Now you should speak and you should participate, most all of you. And one of the girl, Yes, ma'am, sure. she sang a song, solo song. Is she of class 8th? शिवानी शिवम कुछ क्या नाम था उसका, है ना, बहुत अच्छा गाना वो भी गाई थी. And very nice, all of you. Now let's start with the last topic which we were doing, and that was the judiciary, the judicial system of India. All right. Now let's start from there. Yesterday I had done half, and yesterday there was a net problem, very much irritating. So today I will try to finish it. All right. Now let's start from yesterday we had done what is judiciary and what are its important features. Second, you had marked what are the power and function of the Indian judicial system, particularly the Supreme Court of India and the High Courts. Third question which we had marked that what are the or how is the judges and the other judges of the Supreme and High Courts are elected. So these questions we had done yesterday, and I had given you notes over it. That is the judicial system of India, that is the Supreme Court, how it functions, what are its power. Now let's start here with the conclusion that there are number of things uh, about, like first, impeachment. How can a judges of the Supreme Court and High Courts can be removed? You have marked one of the term, that was the impeachment theory. So right here, through impeachment, they were removed. Now here, the judiciary in India, mark here, last paragraph, देखो first column का. The judiciary in India is also one of the most powerful in the world. Mark it as a fill in the blanks. The Supreme Court and High Court have the power to interpret the Constitution of India. That is, they can change and interfere in the matters of Constitution. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive, whether at the union level or the state level. If they find such a law or action is against the Constitution, they can determine the constitutional validity. I think we had done so far. So what is the validity of the Constitution? That if the law, that is the court, confirms it, any laws made by the Constitution or any changes in the laws made by that of the constitutional changes has been made by legislature or executive, whatever changes have been made constitution से related, law से related, और अगर उसमें कोर्ट का मुहर लग गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है. वैलिडिटी मीन्स उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और उसको मान लिया जाता है कि कोर्ट का ऑर्डर लग गया इसमें, इसलिए ये अब एकदम वैलिड है, इसको मानना बहुत जरूरी है. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंदी है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंदीएस्ट इन द वर्ल्ड. सो उसमें एक चीज था कि जब हमारे कंट्री में ये कहा गया कि वी कांट चेंज आवर कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ऑफ टाइम्स, हम लोग उसको चेंज बहुत नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें एक टर्म है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लिखा हुआ चीज को जल्दी डिलीट और ओमिट नहीं किया जा सकता. तो उसमें हम नया ऐड भी कर सकते हैं, नया ये भी करेंगे. तो उसमें एक और फीचर ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल बोथ. ना है ना, फ्लेक्सिबल एंड इनफ्लेक्सिबल बोथ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब ये चीज है तो हम उसको बहुत ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकते और बहुत ज्यादा घटा भी नहीं सकते जो लिखा गया. लेकिन उसमें एक और क्राइटेरिया ऐड है कि वी कैन
change our amend our constitution, जिसको amendment बोलते हो, we can make amendments in our constitution not more than 2000 times. Limitation है, 2000 से ज्यादा बार हम चेंज नहीं कर सकते. तो अभी तक 110 111 चेंजेस हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लोक अदालत एक नया ऐड हुआ, न्याय पंचायत ऐड हुआ, और अब जो ऐड हो रहा है दैट इज द 1/3 रिजर्वेशन ऑफ वुमेन in parliament, that is in Lok Sabha, Rajya Sabha and in पंचायती राज सिस्टम. तो पंचायती राज में तो इम्प्लीमेंट हो गया 1/3 रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी इस पे वर्क चल रहा है ना. सो दैट इज इफ कंफर्म हो गया तो कोर्ट का उस पे ऑर्डर अगर लग गया तो हो गया कि कोर्ट की बात मान ली गई और वहां पे उसका लॉ कंफर्म. ऑलराइट, सो फार दीज टाइप ऑफ थिंग्स है ना. इसलिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव कोई भी अगर कोर्ट में लॉ बनाता है तो उसमें पार्लियामेंट में लॉ बनाता है तो कोर्ट का उसमें मुहर लगना बहुत जरूरी है, तो वो कंफर्म हो गया. दूसरा, अगर हाई कोर्ट कोई भी केस किया है और जो एक्विटल है, जो फंस गया या बच गया, वो चाहता है कि हम फिर से रिव्यू कराए, फिर से हम अपने केस का जांच कराए, तो बोलते हैं ना, जो हार जाता है, सुने हो ना बोलते हुए, दे यूज्ड टू से कि हम ना अपर कोर्ट तक जाएंगे, हम अपना केस अब हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, हम अपना केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे. देखना, आम बोलचाल की भाषा में दे यूज्ड टू स्पीक लाइक दैट, कि हम और आगे जाके लड़ेंगे. तो उसी में कहा गया कि जब कोई भी केस, ऐसे तो पढ़े हो कि कोई भी केस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता है, जब भी जाता है तो लोअर कोर्ट से होते होते वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है. लेकिन 2-3 ऐसे केसेस हैं विच गो डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, जिसको तुम लोग ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बोलते हैं. लेकिन जो अपील हो के जाता है, तो उसी के लिए ये कहा गया है कि मान लो कोई भी केस लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट अगर उस केस को फिर से करता है, उस पे जजमेंट, तो उसको कहा गया कोर्ट ऑफ रिव्यू, फिर से देखना, फिर से प्रॉब्लम को सॉल्व करना. फिर अगर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो फिर उसको कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिव्यू, मींस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दिए हुए जजमेंट को फिर दोबारा से जजमेंट देगा, तो उसको कहा गया कोर्ट ऑफ रिव्यू. और ये सब जब जब जजमेंट फाइनल हो जाता है, लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, और जो पाइल अप रिकॉर्ड्स है उसको कहा गया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. जो अभी भी लॉयर्स एंड एडवोकेट्स दे यूज टू रेफर दैट रिकॉर्ड. if there is a similar case, they used to refer the record to see what was the judgment given in this particular year to this type of cases. All right, now see here, book में देखो, यहाँ से, what is court of review, what is judicial review? They can determine the constitutional validity of any legislature और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री. है ना, कि इन लोग लॉ बनाता है तो जजमेंट पर मुहर लगाता है कोर्ट और उसको फाइनल कर देता है. दूसरा बोलता है इट इज नोन एज, दैट इज when it is challenged before them. और अगर हम इसको चैलेंज करते हैं, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, हम फिर से इसको देखना चाहते हैं, तो उसको कहा गया कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जिसमें हम बताए कि जजमेंट किया हुआ पे फिर से अगर जजमेंट होता है तो जुडिशियल रिव्यू कहा गया. The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the Constitution cannot be changed by Parliament. है ना, सेम यही चीज हम बता रहे हैं कि कोई भी बेसिक लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए हुए जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय, तो वो बना हुआ लॉज को चेंज करता भी है तो उसमें वैलिडिटी और मुहर किसका लगना चाहिए, तभी वो फाइनल होगा. किसका मुहर लगेगा? कैन यू आंसर? हेलो,
कोई नहीं बोल रहे हो? सात्विक आज नहीं है? मैम प्रेसिडेंट। यस, किसका मुहर लगना चाहिए? कोर्ट का। किसका मुहर लगेगा? हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का। स्टेट लेवल पे है तो हाई कोर्ट का, और सेंट्रल लेवल पे है तो सुप्रीम कोर्ट का मुहर लगेगा, तभी वो फाइनल और वैलिडिटी होगा, उसकी इंपॉर्टेंस तभी मानी जाती है। नाउ लास्ट में देखो, द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशियरी allow it to act as a guardian of fundamental right. Inverted comma open, inverted comma close. Elaborate the statement. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो, अंडरलाइन कर दो और वहां पे लिखो elaborate the statement that Indian judiciary acts as the guardian of our fundamental rights. Elaborate, इसको करो, एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। बताओ क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया, तो पढ़ते हो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि लास्ट चैप्टर तुम लोग का डिलीट कर दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, वी आर रीडिंग दीज टू थिंग्स, दीज टू राइट्स गिवन टू अस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है, तो वो लॉ बुक जब बना तो वो पहले गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, वो जनता के लिए बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू द पीपल and people use the power of the constitution in making the government. तो people कौन सा power use करता है? Right to equality, right to vote, right to form the government. Political equality को जनता use करती है, और ये कोई सरकार हमको नहीं दिया है, it is given to us by our constitution. Alright? तो कॉन्स्टिट्यूशन जब दिया तो कॉन्स्टिट्यूशन हमको दो और चीज दिया, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज चूंकि हम लोग को जनता को मिला है, और अगर कोई गवर्नमेंट हम बनाए अपने राइट्स को यूज करके, और वो गवर्नमेंट हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कर्व करती है या हटा देती, डिलीट करती है, तो हमारे पास इतना पावर है that I should challenge that government in the court. It is known as fundamental right, is known as justiciable, क्योंकि वो हमको मिला है, मेरे से बिना कोई पूछे उसको नहीं हटा सकता, जनता से बिना कोई पूछे फंडामेंटल राइट्स को डिलीट नहीं कर सकता। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी जनता को मिला हुआ है। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स फॉलो करते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करें, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे राइट्स एंड ड्यूटीज हैंड इन हैंड, मतलब हाथ पकड़ के चलता है, वॉकिंग हैंड इन हैंड। क्यों? जहाँ अधिकार है जिसे को फंडामेंटल राइट कहते हैं, तो वहां पे कर्तव्य भी है जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। सो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलता है। किस तरह के कंट्री में? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो गया? जैसे पहला है कि वी शुड टाइमली पे आवर टैक्सेस। Second, we should pay respect to our national anthem, national flag, and our national emblem, national जो भी तुम्हारा नेशनलिज्म है वो सारे को रिस्पेक्ट करना है ना। तो बहुत सारा चीज हम लोग जानते भी हैं कि क्या क्या हम लोग करते हैं नेशनल फ्लैग में, नेशनल एंथम में कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, वी नो ऑल दीज थिंग्स। पर उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी जितना है वो चूंकि हमारे ही पैसे से बना है, सो वी शुडंट डिस्ट्रॉय दैट पब्लिक प्रॉपर्टी। सो दीज आवर फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, है ना। तो जब तुम अधिकार लोगे तो तुमको तो कुछ कर्तव्य करना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए जैसे माँ बाप के प्रति कहता है ना कि मेरा अधिकार है, तो माँ बाप के प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी है कि हाउ यू शुड रिस्पेक्ट और हेल्प योर पेरेंट्स,
राइट, तो दोनों साथ साथ चलते। लेकिन एक और चीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हैव यू कम अक्रॉस? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, ये गवर्नमेंट को दिया गया। इसमें पंचायती राज है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, फिर उस तुम्हारा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स है, सोशल एंड वेलफेयर डेवलपमेंट है, ये सोसाइटी से रिलेटेड जितना वर्क है सारा इसमें आता है। तो इसलिए बोला गया कि जब सोसाइटी से रिलेटेड सारा वर्क इसमें आता है, तो अब है कि अगर गवर्नमेंट इसमें से कोई एक राइट, जैसे बहुत दिन तक इंडिया में पंचायती राज सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन कोई भी स्टेट इसके लिए फाइट नहीं कर सकता है कि हमारे स्टेट में क्यों नहीं पंचायती राज है, मेरे विलेज में क्यों नहीं फाइट कर सकते हो? बिकॉज दिस इज गिवन टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर देखता है कि लॉ एंड ऑर्डर परफेक्ट है तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। और उसके लिए अगर हम कहेंगे कि चलो हम कोर्ट में सरकार को खींचेंगे तो वो गलत हो जाए। आई कांट टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट, राइट, बिकॉज इट इज गिवन टू द गवर्नमेंट। लेकिन फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता, पीपल को दिया जाता है। इसमें पीपल के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट कभी भी नहीं हटा सकती है। अगर हटाती है तो उसको कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन एक और क्राइटेरिया है कि जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगता है, मतलब पूरे देश में गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाता है, तो उस समय हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाती है एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज टू प्रोटेक्ट माय लाइफ एंड लिबर्टी। हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं, अपने लिए लॉयर रख सकते हैं, हम अपने जान माल को बचा सकते हैं। ये राइट सिर्फ हमको है, बाकी कोई राइट्स नहीं मिलता ड्यूरिंग इमरजेंसी, बाकी तो सब है ही। इसलिए यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन देता है कि इज इंडियन जुडिशियरी act as the guardian of fundamental rights, तो yes, it act as a guardian of fundamental rights because fundamental rights is given to the citizen of the country, not the government. इसलिए हम इसको, ये जस्टिएबल है, इसको हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। मार्क करो, The citizen have a right to approach the court. ये इसका आंसर देखो है, मार्क करो, approach the court to seek remedy in case of any violation of their rights. Second, mark करो, in recent year the court have given several judgments and directives to protect public interests and human rights. Public interest litigation, human rights में liberty, equality, fraternity, ये सब कोर्ट नया नया केसेस निकाला। Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government, है ना, कि अगर हमारा कोई भी केस फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट कर्व करती है तो हम उसमें कोर्ट में गवर्नमेंट को ले जा सकते हैं। This is called public interest litigation. Write down 1 marks question. What is PIL? That is public litigation interest. Public litigation मतलब कोई भी हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है ना, पब्लिक इंटरेस्ट को हर्ट करता है तो हम उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं। The court interfere to prevent the misuse of government power to make make decision. They check malpractices on the part of public officials. That is why judiciary enjoys a high level of confidence among the people. ये जितना भी नीचे तक मार्क किए हो, इसमें से 2, 4, 5 जितना भी याद कर सकते हो, because it acts as a guardian of fundamental rights. Now my work is finished. I have completed the chapter. Now your work start. You have to prepare the notes and you have to go for learn the answer, है ना। learn the answer पहले ये जितना शॉर्ट फॉर्म्स है, व्हाट इज कोलिजन गवर्नमेंट, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, ये सब जितना है
ऑफिस मेमोरेंडम, ये सबको याद कर लो। जब नोट्स बनाओगे अब तो ये सबको करते हुए आगे बढ़ोगे। नाउ कम टू द क्वेश्चंस, कम टू द क्वेश्चन। मैच द कॉलम, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ देखो, मार्क करो। A new policy is being made to increase the jute export from the country. It will come under jute export, किसमें आ जाएगा? Agriculture in Ministry of Commerce and Industry. फोर्थ को उसके साथ मैच करो। Yes, Siddharth? Is there any problem, Siddharth? 9J. Why 9J is there? 9J का बच्चा तो इसमें नहीं पढ़ता है, कैसे आए हो आज? चला गया? देखो तो काजल, शुभम No, ma'am, he is present in is present in the class. Yes, ma'am, Siddharth 9J. Siddharth, open your mic. Answer my question. Or may I delete you? Remove कर दे? Now, mark here, a new policy is being made to increase the jute export from the country. The Ministry of Commerce and Industry. Second mark karo, telephone services will be made more accessible in rural areas. Which one will be? Fifth, Ministry of Communication and Information Technology. Third, the price of rice and wheat sold under the public distribution system will go down. Ministry of Agriculture, Food and Public Distribution, that is known as Ration, PDS. The Pulse Polio campaign will be launched under Ministry of Health. And the last, the allowances of soldiers posted on high altitudes, high areas will be increased. Ministry of Defense. All the smart, you have done it. Now write some important questions and prepare the notes of it. All right. Now first question, write. What is the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? What are the difference between 3 marks question? मैं भी तैयार करोगे 3 marks question I am giving you. Write down the question. What are the difference between Lok Sabha and Rajya Sabha? Second question, write it. What is the difference between permanent executive and political executive? Permanent executive and political executive. Then next question, write it that what are the Prime Minister's powers in India? Only power. What are the Prime Minister's power in India? ये हम क्वेश्चन दिए, लेकिन इसका आंसर कैसे तैयार करोगे? तीनों एक साथ लिखोगे. How is the Prime Minister elected? What are his power and what are his function? I've given you the answer, so you will write like that. All right. What are the power and functions of the Prime Minister? Second, what are the Prime Minister's powers in India? Second, explain the limitations of the powers of the President. Limitations means drawbacks. उसका limitations तैयार करो. इसको double tick लगाओ. It is a very important question. Explain the discretionary powers of the President. Discretionary means जब coalition government रहता है तो वो खुद से Prime Ministers को appoint करता है ना?
उसको डिस्क्रिशनरी पावर्स कहा गया। एक और चीज बता देते हैं, गवर्नर के पास भी डिस्क्रिशनरी पावर है। नाउ व्हाट इज द गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर? इट मींस दैट प्रेसिडेंट, जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट विल सेंड बैक टू द लोकसभा टू रिकंसिडर इट, है ना, some changes made by the president, and president wants that the Lok Sabha must reconsider it, and then it has to be sent back to the president and he will sign it and it become a law. But when president when Lok Sabha will not reconsider president's idea, it will send as it was. The second time president have to sign it and it will become a law. लेकिन स्टेट में अगर गवर्नर के पास कोई भी बिल आता है तो गवर्नर उसको वापस नहीं भेजता है। ऑर्डिनरी बिल अगर आता है तो यहाँ स्टेट लेवल पे भी अगर गवर्नर साइन कर देता है बिल पे तो इट विल बिकम अ लॉ। लेकिन तुम देखोगे कि गवर्नर इसमें साइन नहीं करता है, वापस भी नहीं भेजता है, तो क्या करता है, वो रख लेता है। और उसको रख लेता है किस लिए? कि वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कंसल्ट करता है, प्रेसिडेंट से कंसल्ट करता है, तब उसमें सिग्नेचर करता है। इसको कहा गया गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर, राइट? It is known as very important power of the governor, and very important power of the president is known as the discretionary powers. Now mark here, next question. How is the president of India elected? He is elected as proportional representative. उसके बाद क्या बताए थे? ट्रांसफरेबल वोट, ये लिखोगे। Alright, now next 3 marks question, write it fast. जल्दी से और लिखो। What is there a need for political institution? Why is there a need for constitutional or political institution? Next, explain the composition of the Council of Ministers. Explain the composition of Council of Ministers. Okay. What is the role of Prime Minister in a coalition government? What is the role of Prime Minister in a coalition government? Next, write it. What is the tenure of the judges of the Supreme Court? Supreme Court. How is the, उसी में लिखोगे second part. How is the judges of the Supreme Court and High Courts are appointed? How are the judges of the Supreme Court and High Courts appointed? Next 3 marks question, write it. What do you understand by public interest litigation? What do you understand by public interest litigation? Next, write it. Give any 3 functions of the government. Give any 3 functions of government. Why Lok Sabha exercises more power than the Rajya Sabha? Why Lok Sabha exercises more power than the Rajya Sabha? Why Lok Sabha exercises more power than the Rajya Sabha? Okay. Now next again. Write a short notes on no confidence motion. Write a short notes on no confidence motion. Write a short notes on no confidence motion. लिख रहे हो?
Write a short notes on the independence of judiciary. Write a short notes on the independence of judiciary. Okay. Pratik Om, which question you had asked? Pratik Om is present in the class. Which question you had asked, Pratik? Yes, ma'am. Yes, question you had asked, no? मैम वो Yes. यस मैम वो राज्यसभा से रिलेटेड था. Central government Rajya Sabha. Yes. Deputy ministers, prime minister. मैम वही आपसे बात करना था मैम. हाँ बोलो. मैम वही आपसे बात करना था तो उसीलिए क्वेश्चन पोस्ट किया था. अभी बात करोगे? पूछो क्या पूछना बता देते हैं. मैम आप यस. हाँ मैम वो राज्यसभा में जैसे टेन्योर होता है उसमें कि हाँ. 2/3 ऑफ मेंबर आफ्टर 2 इयर्स रिटायर हो जाते हैं. हाँ हाँ. लेकिन मैम Tenure उसमें उसका 6 जैसे months का इलेक्शन रहता होता है तो मैम उसमें तो कोई भी क्या? हाँ हाँ मैम. क्या बोले? तो मैम उसमें तो जैसे कोई भी मैम पार्टी अपने मैम मेंबर्स को मैम डायरेक्ट एंट्री दिलवा देते हैं. तो हाँ. मैम उसमें वहीं से मैम डिप्यूटी मिनिस्टर से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर लोकसभा से भी डिप्यूटी मिनिस्टर जाते हैं. लोकसभा से भी जाते हैं लेकिन मैक्सिमम राज्यसभा के ही होते हैं. जैसे अभी देखो मैम सुशील जैसे कुमार मोदी है ना अभी यहाँ बिहार से. यस मैम. देखो उनको यस भेजा मैम. जा रहा है ना वहाँ बिहार से वो मैम लेकिन रिप्रेजेंट वो करने तो जा रहे मैम बाई इलेक्शन के तहत भेजा जा रहा है ना क्योंकि मैम वो रामविलास पासवान का सीट मैम ये स्पेयर है हैं. अभी. हाँ 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 हाँ. तो इसी के लिए ना बोला क्या कि जो भी देखो तो इसको कौन सा इलेक्शन कहा कि बाई इलेक्शन हुआ ना ये. बाई इलेक्शन. बाई यस मैम. इलेक्शन हुआ ना क्योंकि वो तो बाई Yes, ma'am. इलेक्शन के थ्रू वो चला जाएगा वहां पे वैकेंट प्लेस को वहां पे फुल अप कर देगा. लेकिन यस मैम. ये चीज तो हम तुम लोग को पहले भी पता है कि जो सीट वैकेंट हो जाता है ना आइदर डेथ से या रिटायरमेंट से क्योंकि वो डिसॉल्व वो हाउस नहीं होता है कभी भी. तो वहां पे Yes, कैसे भेजा जाएगा. तो जब हमारे स्टेट में जब इलेक्शन होता है जो अभी स्टेट में इलेक्शन हुआ तो उसी में से छांट के भेजा जाता है कि कौन रिप्रेजेंट करेगा बिहार को राज्यसभा में. है ना. तो उसी को कहा गया ऐसे उसका टेन्योर 6 इयर्स का रहता है और हर 2-2 साल के बाद तुम देखोगे कि 2/3 उसके मेंबर्स रिटायर करते जाते हैं. तो जिस क्षेत्र से रिटायर किए किसी भी स्टेट के किसी भी क्षेत्र से तो लगभग वहीं का मेंबर्स होना चाहिए और नहीं तो एनोनिमस कहीं से भी हो सकता है. वो रिप्रेजेंट करता है बिहार को. ऐसे बिहार का सीट और उत्तर प्रदेश का सीट सबसे ज्यादा है राज्यसभा में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. है ना. और पूछना है प्रतीक. क्लियर है मैम और कॉन्सेप्ट? डाउट था मैम लेकिन अभी तो मैम टाइम मैम ये ओवर होने वाला है मैम. 1 मिनट ही बचा दिखा रहा है इसमें. हाँ क्वेश्चन बोलो ना तो हम भेज देंगे व्हाट्सएप. अच्छा व्हाट्सएप पे भेज देना. व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर देंगे. ऑलराइट. मैम अपना फोन नंबर दे देती मैम पूछ लेते हैं आपसे. भाई फोन नंबर जो है उसी नंबर से करो जिसे तुम व्हाट्सएप कनेक्ट किए हो. मैम उस पर मैम कॉल नहीं लगता है. 93 है. यस मैम 93 वाला नंबर. दूसरा नंबर लिखो 620 620 109 109 1866. इससे भी 866. व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हो प्रतीक. मेरा